دور ہی رہتے ہیں شمشیر کو پہچانتے ہیں، دور ہی رہتے ہیں شمشیر کو پہچانتے ہیں، کم سے کم موت کی تصویر کو پہچانتے ہیں، کم سے کم موت کی تصویر کو پہچانتے ہیں۔ یوں تو جاہل ہے سبھی فوج یزیدی میں، مگر تیغ عباس کی تحریر کو پہچانتے، تیغ عباس کی تحریر کو پہچانتے۔ ایک مطلب دو شعر اور سمان ہے۔ حر سبط پیمبر کی طرف دیکھ رہا ہے، حر سبط پیمبر کی طرف دیکھ رہا ہے، حر سبط پیمبر کی طرف دیکھ رہا ہے، پیاسا ہے سمندر کی طرف دیکھ رہا ہے، پیاسا ہے سمندر کی طرف دیکھ رہا ہے، نیزے کی بلندی پا کوئی جیتا ہوا سر، نیزے کی بلندی پا کوئی جیتا ہوا سر، ہارے ہوئے لشکر کی طرف دیکھ رہا ہے، ہارے ہوئے لشکر کی طرف دیکھ رہا ہے، ناواقف آداب خطابت سے پریشان، ناواقف آداب خطابت سے پریشان، معصوم کے منبر کی طرف دیکھ رہا ہے، پیاسا ہے سمندر کی طرف۔ صلوات پڑھیں محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، الذی شرف القاسین بالنالین الشریفین، وسیلتنا فی الدارین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. صلوات پڑھیں محمد۔
کے تیسری مجلس اور جس عنوان کو آپ کی خدمت میں موضوع سخن بنایا ہے وہ ہے اخلاقیات۔ اس لیے کہ کربلا اخلاقیات کی درسگاہ ہے۔ کربلا فکر کو معراج عطا کرنے والی ایک کلاس ہے۔ وہ سلیبس ہے کہ جو ایک دو پائے جانور کو انسان کی کیٹیگری میں پہنچا دیتی ہے۔ کربلا ہے یہ۔ اگر کسی میں کوئی ہنر ہوتا ہے تو وہ ہنر اظہار چاہتا ہے۔ شاعر ہے، اگر صفت شعر گوئی اس کے اندر ہے تو شعر کہے گا ضرور۔ کاتب ہے تو لکھے گا ضرور۔ آرٹسٹ ہے تو کچھ نہ کچھ ڈرا ضرور کرے گا۔ آرکیٹیکٹ ہے تو کوئی نہ کوئی نقشہ، کوئی نہ کوئی عمارت بنا کر چھوڑے گا ضرور۔ اس لیے کہ اس کے اندر جو صفت ہے وہ اس کو مضطرب رکھتی ہے کہ اس کا اظہار کیا جائے۔ وہ صفت اس کو مضطرب رکھتی ہے کہ اس کا اظہار کیا جائے۔ الہی نمائندے ہنر کے کمال پر ہوتے ہیں تو وہ جب اپنے کمال کا اظہار کرتے ہیں تو ان کے کمال اور ہنر کا اظہار کربلا کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ گفتگو کل ہو رہی تھی اس سلسلے میں کہ اخلاق کیا شے ہے۔ ہم لوگ عادت ہے ایک شے اور ایک شے ہے اخلاق۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا ہم لوگ عادت کو بھی اخلاق سمجھتے ہیں اور اخلاق کو بھی عادت سمجھتے ہیں۔ کل آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا فرق بتایا تھا کہ عادت کا تعلق جسم سے ہے، اخلاق کا تعلق روح سے ہے۔ یہ الٹے ہاتھ سے لکھتے ہیں، یہ سیدھے ہاتھ سے لکھتے ہیں۔ مجھے دائیں کروٹ سونے کی عادت ہے، آپ کو بائیں کروٹ سونے کی عادت ہے۔ مجھے ناشتہ اس ٹائم کرنے کی عادت ہے، مجھے سونے کی اس ٹائم عادت ہے۔ یہ عادتیں ہوتی ہیں، یہ ان کا سارا تعلق کس چیز سے ہے؟ جسم سے۔ اخلاق کا تعلق جسم سے نہیں ہے۔ ہم لوگ جسم سے کچھ خاص افعال انجام دیے جائیں ہمارے مقابل تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ با اخلاق اور اچھے اخلاق والا ہے۔ مثلا ایک انسان میرے احترام کے لیے جھک جائے تو میں کیا کہوں گا؟ جب بھی میں ملوں تبھی جھک جائے تو کیا کہوں گا؟ بہت اچھا اخلاق ہے۔ جب ملتے ہیں تب جھک جاتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ صرف جسم جھک رہا ہے یا روح جھک رہی ہے۔ جسم کے اظہار کو میں کیا سمجھ رہا ہوں؟ اخلاق، جبکہ ہو سکتا ہے روح سے کوئی اس کا تعلق ہی نہ ہو۔ ممکن ہے۔ ان دونوں چیزوں کے علاوہ ایک چیز بیچ کی ہے، اس نے سب سے زیادہ کنفیوژن پیدا کر رکھا ہے۔ ایک ہے عادت، ایک ہے اخلاق۔ ان دونوں چیزوں کے بیچ میں ایک چیز اور ہے، اسے کہا جاتا ہے تربیت یا ٹریننگ۔
भाई ये जो बच्चा दुनिया में आया है, गौर कीजिएगा, फर्क समझा रहा हूं सिर्फ। एक बच्चा जो दुनिया में आया है, ये उल्टे हाथ से खाना खा रहा है, उल्टे हाथ से सब काम कर रहा है, जबकि सब उसके घर में राइट हैंडर है, मगर वो बच्चा लेफ्टी हो गया। होता है या नहीं? वो उल्टे हाथ से खाना, छोटा सा है, अभी 2 साल का है, उल्टे हाथ से खाना खा रहा है, उल्टे हाथ से लिख रहा है, उल्टे हाथ से सब काम उल्टे हाथ से कर रहा है, लेफ्ट हैंड से। तो ये लेफ्ट हैंड से इसे करना किसने सिखाया है? इसके जिस्म की आदत है, सिखाया नहीं है। बच्चा है, छोटा सा बच्चा, हर किसी को देख के मुस्कुरा रहा है, हर किसी के पास जा रहा है, हर किसी के क्या है, क्या ये कोई सिखा रहा है इसे? एक चीज है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग ये कि कोई इंसान कोई चीज ना जानता हो, मगर उसे इतनी बार वो काम कराया जाए कि वो ट्रेंड हो जाए कि अगर चाहे तो कर ले, या कोई कराए तो कर ले। आदत का मरहला यह है कि आदत में सामने वाले का कोई इख्तियार नहीं है, आदत में जिसको आदत है उसी का इख्तियार है। मगर ट्रेनिंग का मामला ऐसा होता है कि ट्रेनिंग में दूसरा कराए, या जब जिसे ट्रेनिंग दी गई वो खुद चाहे तो उस काम को करता है। मिसालें दे रहा हूं आपको सिर्फ। इसे क्या कहते हैं? एक आदमी है, उसने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली है, तो ये जो मार्शल आर्ट की उसने ट्रेनिंग ली है, क्या वो हर टाइम मार्शल आर्ट करता है? उसका मुजाहिरा करता है, बस कहीं भी खड़ा है कर रहा है, करता है? नहीं। कोई अगर कराए या वो खुद करना चाहे, तभी। ध्यान रखें, ट्रेनिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, अब गौर कीजिएगा, हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे को ट्रेंड करते हैं। देखो सलाम करो, देखो ये आए हैं खड़े हो जाओ, देखो ये काम, हम क्या कर रहे हैं, ट्रेंड करते हैं अपने बच्चों को। गौर किया, हम क्या करते हैं, ट्रेंड करते हैं। मगर ट्रेनिंग में सबसे बड़ा मसला यह है कि ट्रेनिंग में तकद्दुस नहीं पाया जाता, इसलिए कि ट्रेनिंग जानवरों को भी दी जा सकती है, इंसान को भी दी जा सकती है। ये शेर जो आग के गोले से कूद रहा है, इसकी आदत है, ये इसकी फितरत का तकाजा है? नहीं। क्या चीज है ये? ट्रेनिंग है। शेर कूद गया। ध्यान रखें, ट्रेनिंग जब होती है तो तारीफ शेर की होती है, ये ट्रेनिंग की होती है। अल्लाह, क्रेडिट किसे मिलता है? जो ट्रेनर है उसका, जो ट्रेन कर रहा है, किसको मिलता है क्रेडिट? जो ट्रेन कर रहा है उसे। शेर कूदा, जान जोखिम में कौन डाला है? शेर। और तारीफ किसकी हो रही है? ट्रेनर की। हम क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। ध्यान रखें, ट्रेनिंग ऐसी दीजिए कि आपकी तारीफ हो। ऐसे ट्रेन कीजिए, तारीफ हो। अलबत्ता मैं आपके सामने मिसाल, क्यों ऐसा होता है कि हमारा बच्चा सही, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उसकी, सही ट्रेनिंग दे रहे हैं, अच्छे से ट्रेन कर रहे हैं, मगर बिगड़ जाता है। बहुत प्यार से सबसे पेश आ रहे हैं, मगर जैसे ही गुस्सा आया, फौरन क्या हुआ, चीख के बोल गया माँ बाप पे भी, फट पड़ा। अब क्या हुआ, अपने आप को खो दिया उसने अपने हाथ से। ये कहते हैं हम लोग आपा खो देना, यानी बिल्कुल सही है। अगर कभी कभी कोई ऐसी बात होती है वो आपा खो देता है,
समझ जाइए जहां भी इंसान अपना कंट्रोल खो दे तो समझ जाइए अब तक जितनी चीजें थी वो उसका अखलाक नहीं थी, ट्रेनिंग थी। तोता है, बोलता है या नहीं? तोता बोलता है, कैसे बोलता है? इंसानों की तरह ट्रेन करते हैं उसको। तोता बोलने लगेगा, आपने रख दिया तोते को, बोल रहा है सलाम वालेकुम, पंजतन के नाम सुना रहे, सब कुछ कर रहा है तोता। कैसे? नादे अली तोते को याद करा दी, नादे अली, या अली कर रहे हैं। ऐसे भी तोते देखते हैं, हम तो देख रहे हैं लोग अपने तोतों को ट्रेनिंग कर देते हैं, करते हैं। मगर अगर उस तोते के पिंजरे के पास बिल्ली लाकर छोड़ दी जाए, नादे अली भूल जाएगा, या अली भूल जाएगा। अपनी जिंदगी का चेक कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुश्किलात में आकर खुदा को भूल जाते हो, मौला को भूल जाते हो, कोई याद ही ना आता हो। इमाम हुसैन याद, गुस्सा आ जाए, इमाम हुसैन को भी भूल गए, मौला को भी भूल गए, अल्लाह को भी भूल गए। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाइए आप सिर्फ वो तोते हैं जिन्हें माँ बाप ने ट्रेंड किया था। अगर आप भूल गए तो समझ जाइए सिर्फ वो तोते हैं आप जिन्हें माँ बाप ने ट्रेंड किया था। जैसे ही मुश्किलात आई, हालात नासाजगार हुए, हालात मिजाज के खिलाफ हुए, आप सब कुछ भूल गए। ये ट्रेनिंग है। अहले बैत और अल्लाह के नुमाइंदे, मैंने कल अर्ज किया था, आदतें बदलना बहुत मुश्किल है मगर पॉसिबल है। अखलाक बदलना सबसे मुश्किल काम है। तरबियत बदलना आसान है, ट्रेनिंग चेंज करना आसान है, मगर अखलाक बदलना सबसे मुश्किल है। और उसकी पॉइंट आपको दे रहा हूं, सिर्फ आज की मजलिस यहीं पे रोक रहा हूं, क्योंकि मैं जब शुरू किया था ये नुआन तो मेरा मकसद ये था कि जो अखलाकियात की जो बीमारियां हैं, मसलन गीबत, बोझ, हसद, ये सारी चीजें होती क्यों हैं, किस वजह से पैदा होती हैं, इसकी निशानियां क्या हैं, हो सकता है इजहार ना हुआ, बीमारी अंदर मौजूद हो, और इसका इलाज क्या है, ये मेरा मकसद था। बहरहाल अगर वक्त मिला तो, क्योंकि अभी तो इन्हीं चीजों पे बहस चल रही है। अखलाक क्या है और आदत क्या है? ठीक है, आदत का बदलना मुश्किल है, अखलाक का बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर बहुत ज्यादा मुश्किल ना होता तो अखलाक तब्दील करने के लिए खुदावंद आलम रसूल करीम को अपने सबसे बड़े पैगंबर को न भेजता। सबसे अजीम, खुद फरमाया कि सिर्फ और सिर्फ अखलाक को, मकारी में अखलाक को कमाल तक पहुंचाने के लिए आया हूं। आप समझिए, आदत जो है वो इंसान से ताल्लुक रखती है। मुझे अपने बच्चे को लेफ्ट हैंड से खाना खा रहा है, मैं चाहता हूं कि वो राइट हैंड से खाए। कैसे चेंज कराऊंगा? अल्लाह बोल, इसको समझिए। अलबत्ता माफ कीजिएगा मैं कह रहा हूं, इसको समझिए, आप समझे हुए हैं, मैं तो यानी सिर्फ थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं। आपको बच्चे की उल्टे हाथ से खाना खाने की आदत है, छुड़ानी है। कैसे छुड़ाएंगे? अंगूठा चूसता है बच्चा, आप सिर्फ कह सकते हैं, छोड़ेगा वो खुद ही। आप सिर्फ, आपको देख के उसने निकाल लिया, आप गए फिर रख लिया मुंह में। आप सिर्फ कह सकते हैं, छुड़ाएंगे नहीं। इसको छोड़ने, आदत को ध्यान रखिए, आदत को छोड़ने और इख्तियार करने में किसी दूसरे इंसान का कोई रोल नहीं होता। उस खुद इंसान को जिसको आदत है उसके ऊपर डिपेंड है। वो एक आदमी उल्टे हाथ से लिख रहा है, आप उसकी आदत छुड़ाने के लिए उसके सामने सीधे हाथ से लिखते रहिए, वो कभी नहीं छोड़ेगा। मगर अखलाक की मंजिल दूसरी है।
उल्टे हाथ से जो लिख रहा है उसके सामने आप सीधे हाथ से लिखते रहिए, कभी नहीं छोड़ेगा। मगर अगर कोई बद अखलाक है, आप उसके सामने अच्छे अखलाक से पेश आते रहिए। वो बद अखलाक है, आदत छुट, देखिए आदत को छोड़ने इख्तियार करने का ताल्लुक उससे है जिसे आदत है, मगर अखलाक को छोड़ने या इख्तियार करने का ताल्लुक सामने वाले पर भी है। आप कोई उल्टे हाथ से लिख रहा हो, उसके सामने सारी जिंदगी सीधे हाथ से लिखे, नहीं छोड़ेगा। मगर अगर कोई बद अखलाक है, आप उससे हुस्न अखलाक से पेश आते रहिए, देखिए कब तक नहीं बदलेगा। हम मौलाए कायनात से, या अली अगर कोई आपके साथ बुराई करे तो आप उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे? कहा अच्छा। कहा फिर कोई बुराई करे? कहा फिर अच्छा। कहा फिर करे? कहा फिर अच्छा। कहा कब तक करेंगे? कहा जब तक वो बुराई कर रहा है तब तक अच्छा ही करता रहूंगा। कहा क्यों? कहा जब वो अपना बुरा अखलाक नहीं छोड़ सकता तो मैं अपना अच्छा अखलाक क्यों छोड़ूं? अखलाक के मामले में कहानी ये है कि चाहे बुरे अखलाक वाले को अच्छा अखलाक वाला अच्छा कर पाए या ना कर पाए, मगर एक पॉइंट पर आकर अच्छे अखलाक वाला ही बुरा हो जाता है। हम देखते हैं भाई कब तक अच्छा करते, इसका मतलब यह है कि अब तक जो आप उसको सुधारने की कोशिश कर रहे थे वो कोशिश खालिस नहीं थी। अगर आपकी कोशिश खालिस होती तो आप कभी चेंज ना होते। वो चेंज हो या ना हो, आप जो चेंज हो गए अच्छे से बुरा, इसका मतलब यह है कि आपकी कोशिश खालिस नहीं थी, प्योर आपकी नीयत नहीं थी, उसको चेंज करना आपकी नीयत नहीं थी, आप तो उसको जलील करना चाह रहे थे। आप सोच रहे थे कि उसको सुधार रहे हैं, आप खुद उसको जलील कर रहे थे। आपको सुधारना मकसद नहीं था। ध्यान रखें, निजासत को आबे खालिस से पाक किया जाता है। आबे मुजाफ से पाक करेंगे तो वो जो आबे मुजाफ है खुद नजिस हो जाएगा। निजासत को खालिस पानी से पाक करेंगे, शरबत से पाक करेंगे, शरबत भी नजिस हो जाएगा। ध्यान रखें, अखलाक के मामलात में पहले इंसान को खुद अखलाक हसना की मंजिल पर पहुंचना पड़ेगा, तब जाकर वो दूसरे का अखलाक चेंज कर सकता है, वरना तो खुद ही चेंज हो जाएगा, खुद ही खराब हो जाएगा, खुद ही उसके अंदर, चूंकि आप खुद ताहिर हो। अगर किसी का बुरे अखलाक को अच्छे अखलाक में तब्दील करना है, अपने अखलाक को हसना लाइए। रसूल इस्लाम ने क्या कहा? मकारिम अखलाक को कमाल तक पहुंचाने के लिए खुलक अजीम। अल्लाह ने कहा ऐ रसूल आप खुलक अजीम हैं। कैसे मुमकिन है? आज तो जरा सी कोई बात होती है, बेंगलुरु में जो फसाद हुआ, बेंगलुरु में किस वजह से हुआ? का रसूल इस्लाम के खिलाफ कुछ लिख दिया था, आपने क्या किया? एक अगर जाहिल इंसान ने लिख दिया, आपने क्या किया? घर जला दिए लोगों के। इसका मतलब यह है कि आप जिसकी हुर्मत का दिफा करने के लिए उठ रहे हैं, आपने उसको समझा ही नहीं है। सारी जिंदगी कूड़ा आप पर डाला जाता रहा, आपने इंतकाम नहीं लिया। बुरा अखलाक हमेशा अच्छे अखलाक से तब्दील हो। सोचें, हुसैन ने, कल मैंने जुमला पढ़ा था आपकी खिदमत में कि सोचिए, मिसरा था, सोचिए किस बात ने हुर को पशेमा कर दिया। शेर है ये कि करबला से सीखिए रिश्ते बनाने का हुनर, करबला से सीखिए रिश्ते बनाने का हुनर, सोचिए किस बात ने हुर को पशेमा कर दिया। हुसैन अगर हुर को पानी ना पिलाते, अखलाक करीमाना ये है, हुसैन अगर हुर को पानी ना पिलाते तो क्या हुर नहरे फुरात छोड़कर तशनगी की मंजिलों में आ पाता? सुबह आशूर नहरे फुरात के किनारे टहला है हुर, और किन आवाजों ने बेचैन कर दिया?
कोशिश करनी है। अखलाक का मुजाहिरा, करबला अखलाक सिखा रहे। हुसैन ने उर के लश्कर को पानी पिलाया और मंजिले करबला पर हुसैन आ गए। वो मंजिल कि जहाँ पर कदम रखते ही ज़ैनब ने भाई से कहा, भैया वापस चलिए, ये सरजमीन मेरे दिल को हौला रही है, हौल आ रही है। मुझे कहा, बहन क्या हुआ? कहा, भैया ये जो खाक उड़ कर आई, मुझे इसमें आपके खून की बू आ रही है। हुसैन ने कहा, है मेरी बहन, हा हो ना मज़बहु अतफालना, है मेरी बहन, यही वो जगह है जहाँ मेरे बच्चे ज़बह किए जाएंगे। तारीख लिखती है, हुसैन ने कहा, अब्बास खेमे लगाओ। कौन अब्बास? अब्बास खेमे लगाओ, नस्ब करो खेमे। अब्बास ने खेमे नस्ब करना शुरू किए। कहाँ? नहरे फुरात के किनारे, नहरे फुरात के किनारे तराई पर अब्बास ने खेमे नस्ब करना शुरू किए। ठंडी जगह पर खेमे नस्ब करना शुरू। क्यों? इसलिए कि इराक का मौसम गर्म है। एक मर्तबा कहा गया, अब्बास तुम यहाँ खेमे नहीं लगा सकती, यहाँ से खेमे हटाओ। अब्बास ने कहा कि अब्बास से कह रहे हो खेमे हटाओ? तलवार निकाली। एक मर्तबा हुसैन ये मंजर देख रहे हैं, बहन के पास पहुंचे, कहा, बहन अब अब्बास को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बहन, अब अब्बास को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक मर्तबा कहा, फिजा जाकर अब्बास से कहो ज़ैनब बुला रही है। तारीख लिखती है कि एक मर्तबा फिजा आकर कहती है, अब्बास तुम्हें शहजादी ने याद किया। अब्बास ने जैसे ये नाम सुना, अरे चेहरे पर जो गजब के आसार नुमाया थे फौरन रहमत में तब्दील हो गए। अरे एहतराम में खड़े हुए, एक खत खींच दिया, कहा, देखो मैं खेमे तक जा रहा हूँ, अगर तुम खेमे हटाना चाहते हो, किसी में हिम्मत हो तो इस खत को पार कर दिखा देना। एक मर्तबा अब्बास पहुंचे, ज़ैनब ने कहा, भैया अरे जरा ये खेमे हटा लो। तारीख कहती है अब्बास ने कुछ न कहा, लौट कर आए, अरे खेमों को वहां से हटाया। करबला की सरजमीन पर अब्बास ने खेमे नस्ब करना शुरू किए। पलट कर उस खत को देखा, अरे जो अब्बास खींच कर आए थे। मैं कहूंगा, मौला अरे क्या देख रहे हो, शायद आवाज दे। अरे वफादारी के आगे शुजाअत के जनाजे को देख रहा। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।